Examinations are near, but do not fear because Deepthi is here. I am sure you might have watched my first part of this video in which I have covered general instructions and chapter-wise important points for first 6 chapters of ICSE Class 10 Physics. Today, without wasting your time, I am going to cover chapter 7 onwards. Let us start with chapter 7 sound, which is one of the 3 chapters which have approximately 10 marks question in your board exams. So you cannot ignore the important terms of this chapter like mechanical waves, echo, sonar, natural vibrations, forced vibrations, damped vibrations and above all resonance. One numerical from the determination of speed of sound by the method of echo, V is equal to 2D upon T, has a strong probability to be in the question paper. So practice these type of questions with changed conditions like distance is reduced when person shifted towards cliff or person moves away from the source. If you practice well, there would be no chance of error at least in these numericals. While giving conditions of echo, minimum distance should be 17 meters in air and sound should reach after 0.1 second. These 2 points are considered as a single point only. Because दोनों का मतलब एक ही बात है, 17 मीटर का डिस्टेंस है. क्यों चाहिए 17 मीटर का डिस्टेंस? क्योंकि साउंड को हमारे ईयर पे 0.1 सेकंड के बाद पहुंचना चाहिए. So these 2 points are same. If 2 points are asked, then points of size of the reflector should be high enough or intensity of sound should be given. ये सब points देने हैं जो इस point के अलावा 2 और points हैं. Next point, uses of echo with proper explanation is also very important, so learn it well. When a body is disturbed once in vacuum, then it is natural vibrations. If it is in the presence of any resistive force like air etc., then it is damped vibrations. तो damped और forced में फर्क पकड़ना है आपने. If example from damped vibration are asked, then mention medium properly. क्योंकि damped vibrations कहाँ होंगी? जहाँ vacuum नहीं होगा. वैक्यूम नहीं है, इट मीन्स कोई ना कोई मीडियम है, बट आपको एग्जाम्पल देते टाइम मीडियम का नाम मेंशन करना है properly because marks will be deducted if you do not mention the medium. For example, a simple pendulum oscillating in air creates damped vibration. अगर यही वाइब्रेशन हम वैक्यूम में क्रिएट करेंगे तो ये डैम्प नहीं होंगी, तो ये नेचुरल वाइब्रेशंस होंगी. Resonance is just a special case of forced vibration. Not in all cases of forced vibration, resonance occurs. मुझे याद है हमारे स्पेसिमेन पेपर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पेंडुलम में हमने उस बॉब को हिलाया है जिस बॉब की लेंथ किसी पेंडुलम की लेंथ के इक्वल नहीं है, स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल नहीं है. तो रेजोनेंस कैसे क्रिएट होगी? रेजोनेंस के लिए 2 स्ट्रिंग्स की लेंथ का इक्वल होना जरूरी है, तो दोनों की मैच ही नहीं करेगी तो रेजोनेंस नहीं होगी, वो सिर्फ फोर्स्ड वाइब्रेशन बन के रह जाएगी और थोड़ी देर बाद सीज हो जाएंगी. One of the experiments related with resonance has been asked in nearly all previous board examination papers. So clear your concepts of resonance. कोई सा भी एक्सपेरिमेंट, चाहे पेंडुलम का आ जाएगा, चाहे टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल है, चारों में अलग अलग है, उसका आ जाएगा, या फिर आपको टेस्ट ट्यूब के ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क लाए हैं उसका आ जाएगा. तो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट रेजोनेंस से रिलेटेड जरूर आता है अलॉन्ग विद इट्स डेफिनेशन की डिफाइन दिस फिनोमेना ऑल्सो, तो उसमें आपको रेजोनेंस की डेफिनेशन भी देनी रहती है. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी. इनके एसोसिएटेड फैक्टर्स लाउडनेस के साथ, एम्पलीट्यूड, पिच के साथ, फ्रीक्वेंसी एंड टिम्बर और क्वालिटी के साथ वेव फॉर्म. Along with it, different questions based on these characteristics are also very important. Next is V is equal to F lambda. It means F is inversely proportional to lambda. If FA upon FB, यानी frequency of A body ratio with frequency of B body is asked, then it is lambda B upon lambda A. क्योंकि अभी मैंने बोला कि दोनों inversely proportional है, तो inversely का मतलब क्या है? FA upon FB is equal to lambda B upon lambda A. If velocity of the medium is same for the two waves A and B, तो अगर velocity same है और frequency और lambda का ही relation है तो वो inverse relation में आप directly calculate कर सकते हैं. Next is D is equal to VT upon 2 formula, जो अभी हमने echo का बोला था.
is used only in the case where echo is there in the numerical. Numerical में echo word तो होना चाहिए. It is not necessary that every numerical related with chapter sound is based on echo. If not simple formula, अगर हमें echo का word ही नहीं आया तो हमने जो शुरू से फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम नॉर्मल यूज करेंगे. अगर स्पीड रिफ्लेक्ट होके वापस ही नहीं आई है, echo हुई ही नहीं है, तो आप echo का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो न्यूमेरिकल में? In questions related to demonstration of resonance, statement should be read carefully. The pendulum which we displace is set into vibrations, which is communicated as forced vibration to other pendulums. Resonance occurs only if the length of any of the bob is same as that of the displaced bob. जिसको मैंने हिलाया है उस बॉब की जितनी लेंथ है, स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है, अगर वो लेंथ किसी और बॉब की लेंथ के साथ मैच करेगी तभी वहां पर रेजोनेंस होगी. अगर हमने किसी और बॉब को हिलाया, डिस्प्लेस किया जिसकी लेंथ इक्वली नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं होनी है. फॉर मोर क्लैरिटी प्लीज रेफर टू माय फुल वीडियो ऑन रेजोनेंस. Next is chapter 8, current electricity. This chapter is full of numericals. It means a minor mistake in understanding the statement will lead you in a wrong direction. It can either result in wrong answer, so no marks, or doing the numerical again means using extra time. Have a good hold on SI units and formulas to comprehend the statement. Physics में SI unit हमारे लिए backbone की तरह है. अगर आप SI यूनिट को समझ जाते हैं, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड होगी, आप उस फिजिकल क्वांटिटी को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. टीचर जितना मर्जी क्वेश्चन को घुमा सकता है, न्यूमेरिकल में फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को वो चेंज नहीं कर सकता. तो आपका होल्ड अगर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर है, उसका SI यूनिट आपको पता है, तो आपके न्यूमेरिकल में गलती होने के चांसेस बहुत कम है. This chapter also has a lot of definitions like charge, current, potential difference, resistance, conductance, superconductor, Ohm's law, EMF, terminal voltage, voltage drop, power, etc. We need to learn these definitions and also understand the concept behind these so that we are not only able to answer the questions where definitions are asked directly, जो कि पेपर में बहुत कम होता है. तो इसके पेपर में definitions directly बहुत कम आपको मिलेंगी, but also comprehend the numerical statement. अगर वो आपको कह रहा है EMF कैलकुलेट करनी है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिख जाता है, तो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर की जगह पे आप EMF इज इक्वल टू आई आर प्लस आर लगा देंगे, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता है. डेफिनेशन पता होने की वजह से आप न्यूमेरिकल में गलती नहीं करेंगे. I have recently made a video on this chapter covering all the important formula questions, topics, numericals, etc. To brush your concepts and clarify doubts, please watch it as I cannot solve numericals in this video. One common error which students make from the topic Ohm's law is VI and IV graph. Please remember, VI graph shows resistance, VI graph shows resistance and IV graph shows conductance. तो x एक्सिस और y एक्सिस पे ध्यान से देखना है, और स्लोप में हमेशा हमारी y एक्सिस की क्वांटिटी ऊपर आती है. तो देखना है कि I कहाँ है, V कहाँ है. अगर IV ग्राफ है तो ये कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं है. For the ohmic resistors, it is necessary that the straight line on the VI graph passes through origin. वो लाइन 0 पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि VI ग्राफ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो ओमिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस 0 से इंक्रीज करना है. बट फॉर नॉन ओमिक रेजिस्टर इट इज नॉट कंपल्सरी. Concept of resistance and specific resistance is the other topic you should focus on. It is because many times questions are asked like a wire of length L made up of material of resistivity rho is cut into two equal parts. The resistivity of two parts is equal to. The answer is क्या होना चाहिए? दोनों पार्ट्स की रेजिस्टिविटी सेम होगी. क्यों? क्योंकि वो सेम मटेरियल से बने हैं. रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? मटेरियल पे डिपेंड कर रही है. कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, रेजिस्टिविटी उस पे डिपेंड कर रही है. रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, क्योंकि जब हमने उनको 1 बना दिया था तभी तो रेजिस्टेंस सामने आई थी. रेजिस्टेंस से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तभी होती है जब लेंथ को हमने 1 मीटर और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया. तो इन दोनों फैक्टर्स पे तो रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती है. तो इन्हीं पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो यहाँ पर नॉर्मल आंसर उसका सिर्फ रेजिस्टिविटी सेम रहेगा. One more point associated with the same topic is that specific resistance depends on temperature.
इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर, के लिए इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, कम हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और कांस्टेंट किस में रहेगा? एलॉयस के केस में रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम एलॉयस। कौन कौन से हमारी बुक में? कांस्टेंटाइन, मैंगनीज, ये एलॉयस के नाम है जिनमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहती है, टेम्परेचर के चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं होता या नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। और इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर मेटल्स, जो कि नॉर्मल फिनोमिना है। Another possible question for your board examination point of view is from choice of material for a wire, like filament of electric bulb is made up of which material and why. अगर हमने टंगस्टन चूज किया, क्यों किया? नाइक्रोम चूज किया, क्यों किया? So please focus on all the materials given along with the reasons. 2 marker questions आ सकते हैं. If you are solving a series combination numerical, then your total resistance R will be greater. But if it is in parallel combination, then total resistance R will be less than the least resistance used in the circuit. Parallel combination हम use ही जहां कर रहे हैं, इसका मतलब resistance हमारे सबसे छोटे resistor से भी कम resistance आएगी, जो equivalent आएगी। और सीरीज में तो नॉर्मल प्लस कर रहे हैं तो बढ़ना ही है उसने, सीरीज में इंक्रीज होनी है, पैरेलल में डिक्रीज होनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज किलोवाट आवर। पेपर पास है, अब तो आपको ये यूनिट्स आते हैं, बट फिर भी इसमें गलती होती है। मैनी ए टाइम्स किलोवाट आवर का आंसर मुझे मिलता है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट फॉर पावर, क्योंकि किलो देखते हैं बच्चे, वाट देखते हैं, किलोवाट है पावर है, लेकिन किलोवाट के साथ जो आर लगा है वो टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती है? एनर्जी। So this is the commercial unit of energy, not power. If numericals wants energy in kilowatt hour, then you need to convert time into hours. वहां पर हमें टाइम को घंटों में ही रहने देना है, क्योंकि हमें किलोवाट आवर में ही आंसर देना है। If numerical want energy in joule, तो जूल हमें पता है SI यूनिट है, और SI यूनिट में टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। Then you need to convert time into seconds. मान लीजिए मिनट में दिया है, और अगर हमें किलोवाट आवर में आंसर देना है तो हम मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमें जूल में देना है तो हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज वोल्टेज चेंजिंग न्यूमेरिकल, जिनमें हमें कहा जाता है कि बल्ब में पावर इतनी आ रही है और अभी 220 वोल्ट है, बाद में कम होकर 210 हो गई या 200 हो गई या 250 हो गई, जंप हो गई वोल्टेज। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए? वोल्टेज चेंजिंग न्यूमेरिकल्स, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज कैलकुलेटेड। तो ऐसे में हम बल्ब का पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, सारे फॉर्मूला में आपने करा हुआ है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी लगा के पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, देन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू वोल्टेज ऑन पावर कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली। नेक्स्ट, इफ द बल्ब ऑफ 2 डिफरेंट वॉटेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 अलग अलग वॉट के बल्ब हैं, एक 60 वॉट का है, एक 100 वॉट का है, दोनों को हमने पैरेलल में लगाया, देन हाईएस्ट वॉटेज बल्ब ग्लोज विद मैक्सिमम ब्राइटनेस। यानी पैरेलल में लगे हैं तो ज्यादा ब्राइटनेस से कौन सा बल्ब ग्लो करेगा? जिसकी वॉट ज्यादा है, यानी जिसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा है। किसकी है? 60 और 100 में से तो 100 की है, तो हाईएस्ट वॉटेज बल्ब यानी 100 वॉट बल्ब ग्लो विद मैक्सिमम ब्राइटनेस, जब हमने उनको पैरेलल में लगाया था। एंड इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, यही दोनों बल्ब हैं, यही पावर है 60 और 100 वॉट की, लेकिन अगर हमने सीरीज में लगाया, देन द लोएस्ट वॉटेज बल्ब ग्लोज विद मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो उस समय 60 वॉट का बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा, क्योंकि अभी हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स इस चैप्टर में से हो गए हैं, बट इस पे इतने पॉइंट्स हैं, जितने कवर करूंगी उतने कम है, उतने और माइंड में आ जाते हैं। अगर आपको किसी भी और पॉइंट में डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Coming to chapter 9, which is household circuits. From ring system, only diagram is excluded. General questions can be asked like, all appliances are connected in parallel. What are the functions of all the 3 wires, their color coding, etc. इस तरह के questions तो आएंगे। Total power in a circuit when appliances are connected in parallel is added. P is equal to P1 plus P2 plus P3. कब? जब सर्किट हमारा पैरेलल में लगा हुआ है। बट इफ द एप्लियंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन टोटल पावर इज इक्वल टू P, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। इट मीन्स पावर रिड्यूस हो गई है। दिस इज द रीजन व्हाई ऑल एप्लियंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि सारे पैरेलल में
अच्छे से ऑपरेट होते हैं, इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बट एक रीजन ये भी है। इसके अलावा फ्यूज एंड स्विच आर सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट देयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सो लर्न देम प्रॉपर्ली। किस वायर में कनेक्ट हुआ है, लाइव में है, न्यूट्रल में है, अगर लाइव में नहीं लगाया, न्यूट्रल में फ्यूज लगा दिया तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या उस समय हम डैमेज रिपेयर कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एसोसिएटेड हैं वो आते हैं। नेक्स्ट इज सिंपल डायग्राम ऑफ सॉकेट और प्लग should also be covered as we cannot ignore even the simplest topic if our goal is a perfect score। अब सॉकेट और प्लग के डायग्राम में क्या है, 3 होल बनाने हैं, ऊपर वाला तो अर्थ का ही रहेगा, लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज कर देंगे तो आपका सॉकेट का डायग्राम प्लग का बन जाएगा। कमिंग टू चैप्टर 10 which is electromagnetism, this chapter comprises of many laws and directions associated with them। फर्स्ट ऑफ ऑल स्नो रूल कहाँ अप्लाई करेंगे, आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में जो डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसी में स्नो रूल को अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द वायर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द वायर कैरिंग द करंट इज प्लेस्ड ओवर द नीडल, कंपास नीडल नीचे है उसके ऊपर वायर है, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल डिफ्लेक्ट टूवर्ड वेस्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इफ द वायर इज बिलो द नीडल, अब मैंने वायर को कंपास नीडल के नीचे रखा है तो नॉर्थ पोल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड ईस्ट। दिस रूल इज यूज्ड टू शो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज 3 इंपॉर्टेंट रूल्स फ्रॉम दिस चैप्टर आर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लाएंगे, थंब हमें क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन, और फिंगर्स क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल विच इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें 2 ही क्वांटिटीज दी जाएंगी आपको, एक बताएंगे और एक पूछेंगे। करंट बताएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाएगी, अदरवाइज वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हम तीनों को स्ट्रेच करेंगे। इसमें थंब हमें क्या पॉइंट करेगा, पहले ये बताओ आई क्या है, यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स फिंगर में क्या दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर क्या आएगा, करंट, और उस समय थंब हमें बताएगा मोशन। मोशन यानी कि फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, कंडक्टर के ऊपर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विच इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है, तो मोशन कहाँ होगा, फोर्स कहाँ होगा, जिसमें ये 3 चीजें एसोसिएटेड होंगी, वहां पर हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सेम यही रहेगा, इंडेक्स फिंगर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, ये हमें मोशन बता रहा है कंडक्टर का, उस समय हमारे को ये फिंगर क्या बताएगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या फिर लेंज रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन मोशन ऑफ द कंडक्टर इज गिवन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पर इंड्यूस्ड वर्ड आया है, करंट इंड्यूस होके आगे जा रहा है, वहां पर हम ये थर्ड रूल यानी कि लेंज लॉ या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे। I have made separate video on these rules. You can see them to clear your doubts if you still have any. Practice more and more questions based on diagrams on these laws and rules. पढ़ने में easy है, apply करने में मुश्किल है, जितनी practice करोगे उतना easily समझ पाओगे, question को comprehend करके वहां पर आप answer दे पाओगे। One more point I want to discuss here, पेपर में अगर वो कहते हैं कि हमने बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, तो आप सबको पता है कि उस समय डायरेक्शन जो एसोसिएटेड है वो चेंज हो जाएगी। अगर आपको डायरेक्शन में डाउट भी है तो भी आप एटलीस्ट इतना जरूर कर दो कि अगर आपने पहले एंटी क्लॉकवाइज लिखा है तो क्लॉकवाइज लिख दो। इतना पता होना चाहिए कि हाँ, हमने जब बैटरी के टर्मिनल को चेंज किया है तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने का मतलब यहाँ तो क्लॉकवाइज था तो एंटी हो गया, एंटी था तो क्लॉक हो गया, नॉर्थ था तो साउथ हो गया। तो उस डायरेक्शन को उल्टा लिखने का भी आपको नंबर मिल सकता है अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अगर हमने बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया या करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी फाइनल डायरेक्शन ऑफ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की उसके ऊपर। Next is principle of DC motor and AC generator for better understanding of application of these laws। वैसे DC मोटर और AC जनरेटर की वर्किंग या कुछ और नहीं आ रहा है, बट प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए। So whole concept of electromagnetic induction and Faraday's laws should also be clear from this chapter। Coming to chapter 11, which is calorimetry. This is another chapter which can fetch you 10 marks if you prepare it properly। When there is change in temperature on heating,
टेम्परेचर में चेंज आया है, देन वी यूज द फॉर्मूला हीट एनर्जी mc delta T. m is the mass, c is the specific heat capacity and delta T is the change in temperature. And when there is change in state at its melting point or boiling point, then we use the formula heat energy is equal to m into L, where L is the latent heat. तो यहाँ पर आपको ये जरूर याद रखना है कि स्टेट हमेशा चेंज नहीं हो रही है, 2 बार चेंज होगी, तो उन्हीं दोनों जगह पर हमने ml लगाना है. For numericals based on principle of calorimetry, you can get 1 mark each for your left hand side जहां आप कह रहे हैं कि heat given by the hot body and right hand side जहां आप कह रहे हैं कि heat taken by the cold body. तो दोनों के लिए अलग अलग आपको एक एक मार्क मिल जाता है अगर आप राइट फॉर्मूला में राइट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो. For heat given by hot body, temperature is क्या हो जाएगा, हमेशा फाइनल टेम्परेचर बीच में रहना है. जैसे मान लेते हैं कि हमारा हॉट बॉडी का टेम्परेचर है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर हॉट बॉडी से हमेशा कम आएगा और कोल्ड बॉडी से ज्यादा आएगा. तो जब हमने हॉट बॉडी का टेम्परेचर लेना है तो हम क्या लिखेंगे, T हॉट बॉडी का टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, बिकॉज दिस इज अवर फाइनल टेम्परेचर. मान लेते हैं कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आएगा तो इन बिटवीन, ना 100 से ज्यादा जा सकता है ना 20 से कम आ सकता है, तो दोनों के बीच में है. तो मान लिया हमने यहाँ पर 40 के करीब आ रहा है, तो हमने कैसे करना है, 100 माइनस 40, इट मीन्स हॉट बॉडी का टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर. और राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर इससे कम होने वाला है तो हम T माइनस T कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर लिखते हैं. MC दोनों तरफ रहेगा, जितना जितना मास दिया आपको हॉट बॉडी का, उधर जो मास दिया है कोल्ड बॉडी का. C अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के लिए लगी है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, या अगर हमें दी हुई है मेटल है, वाटर है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. बट टेम्परेचर वो पॉइंट है जहां बच्चा गलती करता है, तो आपने वहां नहीं गलती करने देनी. T हॉट बॉडी माइनस T फाइनल टेम्परेचर, और फॉर हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी के लिए हम T माइनस T कोल्ड बॉडी लेंगे, बिकॉज टेम्परेचर लाइज बिटवीन दीज टू टेम्परेचर. वो ना मिनिमम से नीचे जाएगा ना मैक्सिमम से ऊपर जाएगा. नेक्स्ट इज राइज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर इन केल्विन. दोनों स्केल पे राइज होने पे सेम डिफरेंस आएगा. हीट कैपेसिटी C डैश का फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है, हीट कैपेसिटी को हमने C डैश करना है इज इक्वल टू m इंटू सी है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मल यानी हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी आ जाएगी. Distinguish clearly between heat capacity and specific heat capacity along with their SI unit, definitions, उनका फॉर्मूला में यूज कैसे होता है, ये सब हमें याद रखना है. इसके अलावा कैलोरीमीटर एंड एसोसिएटेड रीजनिंग क्वेश्चंस शुड बी कवर्ड. कैलोरीमीटर में बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हैं कि हमने कौन सी लेयर किस मटेरियल की बनाई है और क्यों बनाई है. तो 3 लेयर्स के लिए हमारे पास तीनों आंसर्स होते हैं, कंडक्शन से बचाने के लिए, कन्वेक्शन से बचाने के लिए और रेडिएशन से हीट लॉस को बचाने के लिए. तो तीनों के लिए क्या क्या किया गया है वो सब याद रखना है. पॉलिश क्यों है, ये सब एसोसिएटेड क्वेश्चंस करने हैं. रीजंस रिलेटेड विद नेचुरल फिनोमेना एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. ये दोनों वैल्यूज हमें याद रखनी है, शुड बी डेल्ट सेपरेटली. हमें इन दोनों को मिक्स नहीं करना है. वैल्यूज भी याद रखनी है. रीजन में अगर मैंने इधर का रीजन में वो कीवर्ड लिख दिया, कीवर्ड का पूरा नंबर खत्म और हमारे आंसर नंबर हमारे को 0 मिलेंगे. तो प्रॉपर कीवर्ड होना चाहिए. A simple rough graph of numerical related with change of phase will lead you in the right direction. अगर आप न्यूमेरिकल्स में ग्राफ बनाएंगे तो आपका ज्यादा सही आएगा आंसर. जरूरी नहीं है कि उसको बनाना ही है हमें, लेकिन हम रफ अपने लिए बना लेते हैं. मे बी हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये आइस है, यहाँ पर आइस और वाटर दोनों हैं, फिर ये ऊपर गया वाटर बन गया, फिर ये स्टीम बन गया और स्टीम और वाटर दोनों है. तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस फेज में अगर मान लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ABCDE एंड F. इस फेज में हमारे पास आइस है, क्योंकि टेम्परेचर मान लीजिए हमने -10 से स्टार्ट किया है, तो इस फेज में हमारे पास सिर्फ आइस है. यहाँ पर हमारे पास आइस भी है और वाटर भी है. CD फेज में सिर्फ वाटर है, यहाँ पर हमारे पास वाटर भी है और स्टीम भी है, और EF फेज में हमारे पास सिर्फ स्टीम है. तो आप ये देख रहे हो कि चेंज इन टेम्परेचर किस किस में आ रहा है.
आइस में आएगा चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर आएगा CD फेज में और EF फेज में। और कहाँ पर हमारे पास दो फिजिकल स्टेट में वो सब्सटेंस है, दो फिजिकल स्टेट में जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, यानी कि BC में भी दो फिजिकल स्टेट है और DE में भी दो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड एंड लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड एंड गैस। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे जब आप न्यूमेरिकल में इनको डालोगे। अगर आप ये रफ डायग्राम, रफ स्केच अपने पास बना लोगे, आपको याद रहेगा कि मैंने ये 3 फेजेस कन्वर्ट करनी है, यूज करनी है। अगर मुझे न्यूमेरिकल सिर्फ आइस से लेकर वाटर तक के लिए है, स्टीम तक के लिए है, तो वो वाली यूज करनी है। तो ग्राफ से आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। So, simple rough graph of numerical related with change of phase will lead you in a right direction. I have solved many numericals in my video on calorimetry in 2 parts. Do view it for better clarity on this topic. These numericals need a lot of practice, so please solve them and not just watch them. देखने से नहीं आएंगे, देखने से बहुत easy लगेंगे, जब करोगे तब उसमें हमारे को mistake समझ में आएंगी. Ice requires heat for melting and steam on condensation releases heat. बर्फ को पिघलने के लिए हीट एनर्जी लेनी है और स्टीम जब कंडेंस होती है, ठंडी होती है, तो वो हमें हीट देती है. That's why ice melts, it takes heat from the surroundings and surroundings become cool. Whereas when steam condenses, it causes burns to the body. Next is change of phase always take place at its melting point. यानी सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो ये मेल्टिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड से वेपर फेज में चला जाएगा. इन दोनों फेजेस में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. यानी यहाँ पर अगर आपको पूछेगा तो ये हमारी मेल्टिंग फेज है, मेल्टिंग फेज BC आ जाएगी और बॉइलिंग फेज यहाँ पर DE आ जाएगी. इस फेज में टेम्परेचर जितना भी था, अगर 0 था तो 0 ही रहा, 100 था तो 100 ही रहा. तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट टिल द होल कन्वर्जन टेक प्लेस. जब पूरा आइस वाटर बन जाएगा तब उसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, या पूरा वाटर जब स्टीम बन जाएगा फिर स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. अदर देन दिस, इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर एंड इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. Our last chapter is radioactivity, modern physics. Only one exercise is in the syllabus for the year 2022 and 23, and near about 10 marks are allocated to this single exercise because B is deleted. Simple concepts of isotope, isobars and isotones should be covered to understand the proper answers when it is asked about daughter nuclei after the emission of either alpha or beta and gamma radiations. Next is comparison of properties of these alpha, beta or gamma radiations should be very clear, especially regarding their penetrating power, ionizing power and biological damage. Next is important reasoning type questions from this chapter according to me are: how can an electron be emitted in beta decay from the nucleus? न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कहाँ से आया, तो एक्सप्लेन करो. नेक्स्ट इज बीटा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड मोर देन अल्फा पार्टिकल, डिफ्लेक्शन क्यों है बीटा पार्टिकल की ज्यादा. थर्ड इज रेडियोएक्टिव डिके इज अ रैंडम फिनोमेना. नेक्स्ट इज रेडियोएक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ द पावर प्लांट मस्ट बी शील्डेड विद लेड एंड स्टील वॉल्स एटसेट्रा. क्यों शील्डिंग करते हैं, आप सबको पता है, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता है सब कुछ टोंग भी लीड का है, सब कुछ लेड से ही बना हुआ आएगा. बस उसके लिए हमने थोड़ा सा लिख देना है कि वो उसको रोक सकती है, कितनी थिकनेस कितने को रोक सकती है. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टू कंप्लीट द न्यूक्लियर चेंज इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस मोर एंड मोर. जिसमें भी न्यूक्लियर चेंज वाली आई हुई है रिएक्शंस, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, वो तो आएंगी ही आएंगी. लाइक हमें XZA करके दे दिया उन्होंने कि बीटा एमिट हो रहा है, XZA है, इसमें से कौन सा पार्टिकल एमिट कर देते हैं. मान लिया हमने पहले बीटा एमिट कर दिया तो हमारे पास X1 बन गया, फिर गामा एमिट कर दिया तो X2 बन गया, उसके बाद लास्ट में हमने अल्फा भी एमिट कर दिया, X3 बन गया, और बिल्कुल एंड में हमने बीटा एमिट किया तो X4 बन गया. तो अब यहाँ पर क्या क्या बनता जा रहा है, इसको हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर इससे पता लगाना है. हमको पता, रूल्स अब तक याद हो गए होंगे आपको कि बीटा डीके हुआ है तो एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज हो जाना है, तो Z+1 हो गया, और A हमारा मास नंबर ऐसे कैसे ही रहेगा.
जब गामा डिके हुआ तो सिर्फ एनर्जी में फर्क पड़ेगा, बाकी ना तो मास नंबर में और ना एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं है। एटॉमिक नंबर भी Z+1 है, मास नंबर भी A ही रहा। हाँ, जब अल्फा डिके हुआ तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा डिके का मतलब -2 होता है, तो यहाँ पर Z+1 एटॉमिक नंबर, इसमें से -2 करूंगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2 + 1, इट मीन Z-1 आ जाएगा। और मास नंबर में से 4 माइनस करेंगे तो A-4 आ जाएगा। लास्ट में जब बीटा डिके किया तो फिर से +1 हो गया, तो अब Z-1 था और फिर से +1 हो गया, इट मीन्स ये क्या रह गया, Z ही रह गया। तो एटॉमिक नंबर लास्ट में आके भी Z ही रह गया, लेकिन मास नंबर हमारा A-4 आ गया। तो इस तरह से ये पूरी इक्वेशंस आपको कवर करनी है। व्हाट विल हैपन व्हेन बीटा डिके, व्हेन गामा डिके, व्हेन अल्फा डिके हैपन इन इट इज अ न्यूक्लियर चेंज, तो आपको उसके हिसाब से चलते जाना है। Sometimes reverse reactions might come, like mass number and atomic number of the last daughter nucleus is given, then we have to reverse our calculation. कई बार हमें लास्ट वाले एलिमेंट का दिया होगा और हमसे पीछे वाले पूछे जाएंगे। जैसे अब इसके अंदर क्वेश्चन है, मैं एक एक एग्जांपल ही आपको अभी समझा सकती हूँ, आपको क्वेश्चन समझ आ ही जाएगा। x है, बीटा डिके हो रहा है, बीटा डिके होने के बाद ये x1 बन रहा है, उसके बाद फिर से अल्फा डिके हो रहा है, x2 बन रहा है, और लास्ट में एक बार और अल्फा डिके हो रहा है और ये x3 बन रहा है, और लास्ट वाले एलिमेंट x3 का हमें दिया है 69 एंड 172। 69 और 172 हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर लास्ट एलिमेंट का दिया है। अब हमने इससे पीछे आना है, यानी कि अल्फा डिके से पहले कितना था, ये पहले ये हमने क्या किया था, -2 और -4 करने पे आया था। अब ये +2 और +4 करेंगे, तो 69 में हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो गया। इसमें +4 करेंगे तो कितना हो गया, 176 हो गया। अब ये भी -2 करने से इतना बना था, यानी ये इससे 2 और ज्यादा होगा, यानी 73 हो गया। मास नंबर इससे 4 और ज्यादा होगा, यानी कि 180 हो गया। अब बीटा जब डिके करते हैं तो हम क्या करते हैं, +1 करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 करेंगे तो एटॉमिक नंबर 72 हो जाएगा, लेकिन मास नंबर हमारे पास 180 ही रहेगा। तो 72 और 180 हमारा x का एटॉमिक नंबर मास नंबर आया, x1 का, x2 का, ये तीनों हमने नीचे आंसर डाल के लिख देना है। यहाँ पर तीनों को अलग से लिखने पे ही आपको एग्जामिनर नंबर दे पाएगा। डोंट इग्नोर द टॉपिक ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, इवन दो इट इज वेरी स्मॉल, बट आपको उसको कवर करना है। उसमें इंटरनल एक्सटर्नल रेडिएशंस के बारे में थोड़ी सी एग्जांपल्स है, वो हमने कवर करनी है, क्योंकि वो टॉपिक भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, काफी बार पेपर में आया हुआ टॉपिक है। With this, I conclude my today's video. Hope you found these points valuable not only for your pre-board but for your board examination. Please don't forget to give your valuable feedback. जैसे आप व्यूज तो करते हैं, देखते हैं, लेकिन अपने फीडबैक मुझे दिया कीजिए। जैसे आज फर्स्ट पार्ट पे इसमें मेरे पास कमेंट आया है, मोस्ट यूजफुल कंटेंट एवर विच इज टू बी नोटिस्ड बाय एवरी स्टूडेंट, कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय ऑल ऑफ अस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि आपने अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर किया और मुझे बताया। मोस्ट यूजफुल कंटेंट ठीक है कि अगर आप उसको देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और मुझे अच्छे नंबर लाकर बताएंगे, और जब मार्क्स आ जाएंगे तो मेरे साथ शेयर करना भूलना नहीं है, मेरे साथ शेयर भी करना है उसके बाद। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. And don't forget to give your valuable comment. Thank you.